بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، افلا اخبرکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں اس چیز کو نہ بتاؤں جو تم کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ وہ ہے سلام کو عام کرنا، افشوا السلام بینکم۔ سلام یہ جنت میں فرشتے اور جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو۔ یہ معنی ہیں السلام علیکم کے۔ اس کے ادب کے سلسلے میں جو ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ ایک گزرنے والا جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس پر سلام کرے گا، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گی۔ یہ آداب سکھائے گئے۔ ہم جس سے سلام کرتے ہیں اس میں 3 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے جسے سلام کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی اچھے ایمان والا ہو، تو اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ کوئی آپ سے سلام کرتا ہے، وہ مومن ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جیسا اس نے سلام کیا ویسے ہی اس کا جواب دیں گے یا اس سے بہتر جواب دیں گے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ یا تو وعلیکم السلام کہیں گے یا اس سے بہتر کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جیسا اس نے سلام کیا یا تو وہ اتنا ہی جواب دیں یا اس سے بڑھ کر جواب دیں۔ اگر کوئی آپ سے سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ وعلیکم السلام کہہ کے چپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو اس سے اتنا دینا ہے یا اس سے زیادہ دینا ہے۔ یہ ایسے شخص کا جو مومن ہے، اچھے ایمان والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ سے سلام کرنے والا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو۔ کافر آپ سے سلام کرے، ہوتا ہے آپس میں رہتے ہیں ایک دوسرے، تو کافر بھی سلام کرتے ہیں، تو کافر کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلیکم، یہ جب یہودیوں نے اللہ کے رسول کو السلام علیکم کہا، یعنی انہوں نے بد دعا دی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس کا جواب وعلیکم سے دے دو۔ انہوں نے جب بد دعا دی کہ آپ مر جائیں، سلام کی جگہ انہوں نے کہا کہ بد دعا دی اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ تم زیادہ کچھ نہیں کہو، صرف وعلیکم کہہ دو کہ تم پر بھی ویسا ہی ہو جیسا تم نے میرے لیے کہا۔ اگر کوئی کافر آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب
दे सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू। आप किसी मोमिनीन को ये सिखाया गया, कुरान हमें सिखाता है कि अगर हम किसी के घर पे जाएं या अपने घर पर भी जाएं तो हम सलाम करें। पहले तो तस्तअनिसू ऐ तस्तअज़िनू, इजाज़त लें, और दूसरा सलाम करें, हत्ता तुसल्लिमू। एक सलाम करना होता है अपने आप पे, यानी घर में दाखिल हुए, अपने घर में दाखिल हुए, फिर भी आप सलाम करके दाखिल हो रहे हैं। और दूसरे के घर में जाने के लिए दो चीज़ें, एक तो इजाज़त और दूसरा सलाम, ये ज़रूरी है। और ये तरीक़ा नया नहीं है, बल्कि अंबिया का तरीक़ा यही रहा है। जैसा अल्लाह ताला ने कहा, हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्तों की जमात आई थी तो उन्होंने सलाम किया था, अल्लाह के ये हज़रत इब्राहीम को सलाम किया। तो गोया कि ये सलाम कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि सलाम बहुत पहले से सलामती के कलमात एक दूसरे को कहने का रिवाज इस्लाम में इब्तिदा ही से है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है कि फ़लाँ ने आपको सलाम किया है, जैसे कोई आके आपसे कहता है कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार आपको सलाम भेजे हैं, तो उसका जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब देंगे व अलैका व अलैहिस्सलाम, यानी सलामती तुम पर भी हो और सलामती उस पर भी हो। गोया कि आप किसी गायब का जवाब दे रहे हैं। सलाम के आदाब शुरू में मैंने बताए, उसमें और कुछ आदाब हैं। जैसे एक जमात बैठी हुई है और कोई बाहर से आ रहा है, तो वहाँ पे सलाम करना आने वाले के लिए ज़रूरी है। और सलाम के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम सलाम करोगे, एक दूसरे को सलाम करोगे, तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि इसका सलाम का माना ही होता है कि आप मेरी तरफ से मामून हैं। अगर आप किसी को सलाम करते हैं तो गोया कि आप उसको बाखबर कर रहे हैं कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पर सलामती हो, यानी आप मुझसे मामून हैं। तो जिस शख्स को सामने वाले को आप कहेंगे कि आप मामून हैं, तो क्या वो आपके लिए बुरा सोच सकता है? या आप किसी शख्स को कहें कि तुम पर सलामती ही सलामती हो, तुम अच्छे रहो, नेक रहो, भले रहो। जिस शख्स को एक इंसान सामने वाला ऐसा कहे, तो क्या दूसरा शख्स उसके बारे में बुरा सोच सकता है? नहीं सोचेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम सलाम को आम करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान उससे मजबूत होगा। इसीलिए सहाबा के दौर में अगर कोई पिल्लर बीच में आ जाता, मिसाल के तौर पर एक सहाबी इधर से गुजर रहे हैं, एक इधर से गुजर रहे हैं, बीच में कोई दीवार आ गई, फिर उधर से मिलते तो अस्सलाम वालेकुम, यानी सलामन सलामन सलामन, ये आवाज़ आती रहनी चाहिए। मुसलमानों का मोहल्ला, मुसलमानों में सलाम की आवाज़ आती रहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल छोटे बच्चों को सलाम करते थे, छोटे बच्चों को सलाम करते थे। उसके कई फ़वाइद हैं। छोटे बच्चों को सलाम करने में एक तो आप अपने तवाज़ु को दिखाएंगे, दूसरा बच्चे आपसे करीब होंगे, तीसरा बच्चे आपसे सीखेंगे, मुआशरे में एक अच्छी फ़ज़ा कायम होगी। तो सलाम करने में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों सलाम करूँ, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। सलाम इब्तिदाउ सलाम अफजल है, लेकिन जवाब देना वो वाजिब है। जो आप सलाम खुद से करते हैं ये अफजल है, लेकिन अगर कोई कर दिया आपको तो आपको ना चाहते हुए भी जवाब देना होगा, वाजिब है आप पर के जवाब दें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि सलाम जैसे हसीन अमल को अल्लाह ताला हमें आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।